average power associated with pure capacitor. Instantaneous voltage E equals E naught sin omega t. Instantaneous current I equals I naught sin omega t प्लस पाई बाई टू. वहां नहीं बैठेंगे पीछे कोई भी. I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. और इसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और I इक्वल्स आई नॉट कॉस ओमेगा टी. इंस्टेंटेनियस पावर ई आई, तो पावर बना आपका ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. P इक्वल्स ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी. इंस्टेंटेनियस पावर dw by dt equals e naught I naught by 2 sin 2 omega t. Then a small amount of work done in a small time dt, e naught I naught by 2 sin 2 omega t dt. Total work done over one complete cycle, total work done over one complete cycle of AC, total work done equals integration of dw from time 0 to time capital T. W equals integration from 0 to T E naught I naught by 2 sin 2 omega t dt. E naught I naught and 2 are constant. E naught I naught by 2 0 to t sin 2 omega t dt. Then W equals E naught I naught by 2 minus cos 2 omega t by 2 omega from 0 to t minus E naught I naught by 2 omega cos 4 omega. ओके, 2 ओमेगा टी, बल्कि मैं ओमेगा को भी ओपन कर लूं, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी फ्रॉम 0 टू टी. W equals minus E naught I naught by 4 omega cos 4 पाई. 4 पाई किस लिए, यहाँ कैपिटल टी आपने रखा, कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 4 पाई माइनस cos 0 अगेन E naught I naught by 4 omega
1 माइनस 1, तो टोटल वर्क डन इक्वल 0, टोटल वर्क डन इक्वल 0. Then average power over one complete cycle, total work done upon total time, which is average power over one complete cycle for pure capacitor is also 0. There is no power dissipated. ये आपका सोर्स वोल्टेज 0, T/4, T/2 और यहाँ T. तो कैसे इंक्रीज हुआ? T/4 तक इंक्रीज हुआ और फिर T/2 तक डिक्रीज हुआ. अब हम सिर्फ इस पॉजिटिव हाफ के लिए डिस्कस कर लेंगे बात, फॉर ओनली पॉजिटिव हाफ. This is capacitor and the source of alternating EMF equals E0 sin omega t. During the rise of voltage, the capacitor gain charge. Electric field get established between the plates of capacitor. The energy supplied by this source get stored as electric potential energy of capacitor. Right? Now, the voltage of source start falling after 1/4 cycle. The voltage of source start falling. ये डिक्रीज होने लगा. अब इसके डिक्रीज होने पर क्या हुआ? The voltage across the capacitor become greater than the EMF of the source. क्योंकि ये चार्ज हो चुका था, इस पर पोटेंशियल डेवलप हो चुका था. कितना? जो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है वहां तक इसका वोल्टेज जा चुका था. किसका वोल्टेज जा चुका था? कैपेसिटर का. लेकिन जब आपके सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज होने लगा तो अब आपका ये कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में करंट ड्राइव करना शुरू कर देगा. मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट अगेन रिटर्न बैक टू द सोर्स. सोर्स उसे एक्सेप्ट करता है, स्टोर कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या करता है, इससे हमें मतलब नहीं है. ड्यूरिंग 1/4 cycle of AC, energy is gained by capacitor from the source. The energy supplied by the source get converted into electric potential energy. During next 1/4 cycle, the capacitor start behaving as source. Why? Because the voltage across the capacitor plates is larger than the source. So simply apply Kirchhoff's law. What will happen? The current will flow in a reverse direction. Right? So for the negative half cycle, the same thing happen, but in opposite direction, the voltage is reversed. Correct? So therefore, over half cycle or over one complete cycle, the net power, net energy dissipated by the pure capacitor is 0. वर्क फोर साइकिल के लिए आप करोगे कैसे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1/4 साइकिल का मींस आप जानते हैं व्हाट इज द टाइम. जो नॉर्मल सप्लाई हमें मिल रही है इट इज एट 50 हर्ट्ज. तो 1/4 साइकिल मींस 1/200 सेकेंड. हाउ विल यू डू इट? 1/4 सेकेंड के लिए, एग्जैक्टली 1/4 सेकेंड के लिए, 1/200 सेकेंड के लिए आपने स्विच ऑन रखा और फिर ऑफ कर दिया. हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, हो सकता है ये स्पेशल सर्किट्स बन सकते हैं, तो फिर कैपेसिटर लगातार चार्ज होता चला जाएगा, वापस नहीं जाएगी इसको. अगर आप एग्जैक्टली 1/4 साइकिल अलाउ करते हैं कैपेसिटर के लिए तो हो जाएगा. और ये
प्रैक्टिकली भी हो जाता है, प्रैक्टिकली हो जाता है। कभी आप कैपेसिटर खरीदने जाए, कभी आप कैपेसिटर, पंखे का कैपेसिटर आपका खराब हो गया, तो दुकानदार क्या करता है, लो जी जरा चेक करा लो ये कैपेसिटर, वो सीधे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल कहाँ लगा देता है, जो सॉकेट के यहाँ है, और फिर इन दोनों वायर्स को वो आपस में टच करके दिखाता है, देखो जी स्पार्क निकल रहा है, बढ़िया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, दो चार बार वो ट्राई करेगा, हो सकता है पहली बार में दूसरी बार में हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों टर्मिनल यहाँ लगाए और दोनों को आपने शॉर्ट किया, कोई चार्ज गेन नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको वापस निकाला तब इस कंडीशन में था, यहां था ये। तो कभी कभार ऐसा चांस बन जाता है, बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। यस, अगर एग्जैक्टली 1/4 साइकिल या 3/4 टाइम पर आपने 3/4 साइकिल पर आपने इसे निकाल लिया, तो उस टाइम कैपेसिटर चार्ज मिलेगा आपको। और जब आप इसके दोनों तार आपस में टच करेंगे तो एक स्पार्क निकलता, बढ़िया स्पार्क निकलता। उसी से दुकानदार आपको ये चेक करके भी देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब डिस्कनेक्ट किया तब यहाँ हो साइकिल, हाफ साइकिल हो या 1.5 साइकिल हो, 2.5 साइकिल हो, या 2 साइकिल्स हो, 3 साइकिल्स हो, और उस टाइम आपका कैपेसिटर चार्ज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है बात ये?